اس چار دیواری کے باہر بسنے والے لوگ اس چار دیواری کے اس آسمان کو تو بخوبی جانتے ہیں کہ جس آسمان پر ہونے والی حرکت کو کوئی شاہین سے تعبیر کرتا ہے تو کوئی اسے شہباز کہتا ہے، لیکن باہر کے لوگ اس حقیقت سے ناآشنا ہیں کہ یہ کیوں کر ہوتا ہے کہ اس چار دیواری میں بسنے والے مکین اپنی طاقت پرواز کو زمین سے آسمان کی انتہا بلندیوں تک ایسے لے جاتے ہیں گویا فقط پرواز ہی ہے مقصد حیات ان کا جنون، ان کے شب و روز، ان کی اپنے ہی ذات سے جاری جہد مسلسل دیکھنے کا اشتیاق لے گیا ہمیں اس در پر جسے لوگ PF رسالپور کہتے ہیں کہ یہ ان شاہینوں کا مسکن ہے جو گر اڑ جائیں تو ٹکرا جائیں طوفانوں سے، گر ڈٹ جائیں تو رخ موڑ دیں ہواؤں کی۔ PF رسالپور کے شب و روز عام لوگوں کی زندگی سے ہر لحاظ سے مختلف بلکہ غیر معمولی ہے۔ یہ ایک ایسا جزیرہ ہے کہ جہاں ہر آنے والا ایک جہد مسلسل کی بھٹی سے نکل کر وہ فولاد بن جاتا ہے کہ پھر آسمان بھی اس کے آگے ہیچ ہے۔ Even sky is not the limit۔ پرچم پٹے، پرچم سامنے اسلام۔ یہ حمزہ ہے، اس کے شب و روز ہر لحاظ سے ایک عام پاکستانی نوجوان سے مختلف ہے۔ دن کی روٹین ہے بریفلی آپ بتائیں، صبح کتنے میں اٹھتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ صبح بیسکلی ہم لوگ 5:45 پہ اٹھتے ہیں، وی گو فار مارننگ جسٹ، فزیکل ایکسرسائز ہوتی ہے، موسٹلی مائل ہوتا ہے، بھاگتے ہیں ہم لوگ واپس آتے ہیں بلاکس میں اور وہاں پہ تیار ہوتے ہیں، بریک فاسٹ وغیرہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آج کل تو پریڈ ڈیز چل رہے ہیں تو آرمری جاتے ہیں رائفلز ایشو کرا کے پریڈس کو۔ بہت بھوک لگتی ہوگی؟ بہت بھوک لگتی ہے، ظاہر سی بات، اتنا ایکزرٹ کرتے ہیں تو کھانا ہی پڑتا ہے۔ کیا فیوریٹ ڈش کیا آپ کی ادھر؟ ادھر میری فیوریٹ ڈش بریانی ہے۔ اچھی بریانی بنتی ہے؟ بہت اچھی بنتی ہے، کھانا اچھا بنتا ہے؟ کھانا کافی اچھا ہے، بہت اچھا اسٹینڈرڈ ہے کھانے کا یہاں پہ۔ یو کین ایٹ ایز مچ جتنا چاہیں آپ کھا سکتے ہیں۔ بالکل۔ 4 بجے کے بعد گیمز ہوتی ہیں، گیمز ہم لوگ کرتے ہیں ٹل مغرب، عصر سے مغرب تک ہوتی ہیں بیسکلی گیمز۔ تو گیمز کے بعد ہم لوگ آتے ہیں اور ڈنر کے لیے پریپیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو، پھر اس کے بعد جا کے ڈنر کے بعد پریپ ہوتی ہے 2 گھنٹے کی۔ پریپ سے مراد کیا؟ پریپ سے مراد یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے رومز میں بیٹھ کے اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو سینئرز کس وجہ سے پنشمنٹ دے سکتے ہیں؟ کیا منیمم کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ منیمم تو کچھ بھی ہو سکتی ہے، آپ کے ڈریس کو بھی وہ لوگ چیک کر سکتے ہیں، باقی آس پاس گزرتے ہوئے اگر آپ نے دھیمی سی آواز میں سلام کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ جی، وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر ان کو نہیں سنائی دیا تو اس کے اوپر بھی کافی ہو سکتی ہے آپ کی۔ مثلاً دھیمی آواز سے کیا مراد ہے؟ کوئی آپ لیول میں اس کے ساؤنڈ کے سلام؟ بالکل، ایک جونیئر موسٹ جب آتے ہیں وائٹس میں اسپیشلی، ان کی ایک اسٹرینتھ 20 ہوتی ہے جس میں ان بالکل چیخ کے سلام کرنا ہوتا ہے۔ کس طرح کر دیتا ہوں۔ السلام علیکم سر، السلام علیکم سر، میکسیمم ہے یہ میکسیمم ہے۔ تو وہ کتنی ہوتی ہے جس میں پنشمنٹ مل جاتی ہے؟ پنشمنٹ اگر آپ جس طرح نارملی آپ اگر آس پاس گزرے السلام علیکم کر کے چلے جائیں تو اس کے اوپر پھر ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ رننگ ہوتی ہے۔ بیسکلی آپ کو کوئی پول بتا دیں گے یا فنگر پوائنٹ بتا دیں گے، اس کو آپ کو بھاگ کے ٹچ کر کے واپس آنا ہو۔ اگر آپ اتنا سیریس نہ ہو وہ تو ہو سکتا ہے آپ کو کسی پلر یا کسی درخت یا کسی چیز کے سامنے کھڑا کر کے آپ کو کہیں کہ اس کو سلام کرو اونچی اونچی آواز میں۔ اب اگر فرض کریں یہاں پہ کوئی درخت ہے، ٹھیک ہے، میں اس درخت کے سامنے کھڑا کر کے بس میں شان میں ہو جاؤں گا اور سلام کرتا رہوں گا اس کو 10-12 دفعہ، اس کو السلام علیکم سر، السلام علیکم سر، السلام علیکم سر، درخت بھی کرنا، السلام علیکم درخت بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں وہ، اگر السلام علیکم درخت،
ठीक है, उस वक्त फीलिंग क्या होती है जब ये सब कुछ गुजर रहा होता है? उस वक्त लिटरली कोई फीलिंग नहीं होती। अगर आप शुरू में आते हैं ना तो आपको तब बहुत ज्यादा फीलिंग्स होती हैं। एंड में ये फीलिंग्स बिल्कुल डेड हो जाती हैं। आपको ये लोग कुछ भी करने को कहें आप करने के लिए तैयार होंगे। आप सोचेंगे बहुत कम। बिल्कुल लगता है यार ये क्या हो रहा है। बहुत लगता है आपको। जब आप सिविल से आते हैं ना, फ्री इन्वायरमेंट होता है बाहर। अगर आपको ये कुछ बाहर कहे तो आप 10 दफा कहेंगे, उससे सोचेंगे करने से पहले कि यार ये क्या करवा रहे हैं मुझसे। यहाँ पे नहीं सोचता बंदा फिर। आपकी वालदा हो सकता है आपको भी सुन रही हो, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उनको? बस सिर्फ यही कहना है कि आई लव यू मॉम, आई लव यू लॉट एंड आई मिस यू। तो आपके ज़हन में है कि अब जो है जैसे इस अकेडमी में आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, बेसिकली आप ट्रेनिंग ले रहे हैं या तो गाजी बनने की या शहीद होने की? When the occasion arises, मुझे लड़ना है और इस मुल्क के लिए लड़ना है। तो सालपुर अकेडमी के कैंपस में सुबह से लेकर रात तक डिसिप्लिन ही डिसिप्लिन है। रात को लाइट आउट जस्ट नाउ के ऐलान के बाद पूरे कैंपस की लाइट्स ऑफ कर दी जाती हैं। उसके बाद कैडेट अपने बेड में सारी रात जाग कर तो गुजार सकता है, लेकिन लाइट्स नहीं ऑन कर सकता। सालपुर अकेडमी के लड़के लड़कियां इसलिए यहाँ जमा हैं ताकि पैरा ट्रूपिंग जैसे चैलेंजिंग फन पर अबूर हासिल कर सकें। लेकिन इसकी ट्रेनिंग का म्यार इतना सख्त है कि यहाँ आने वाले अक्सर उम्मीदवार पास नहीं हो पाते। हाथ ये पकड़े होते हैं, ग्रिप के वस्ता आपने नीचे बॉडी की तरफ आए, नीज टुगेदर, सेम टो हील नीज सारे टाइट बॉडी पोजीशन में आना है। क्लियर है? ये है स्टैंडर्ड। ये जब आप पूरा यहाँ पर पोजीशन बनाएंगे, यहाँ पर आपको स्टाफ कहेगा शुरू कर। नाम क्या आपका? एशियन कैडेट मोहम्मद नासिर खान। कहाँ से आप? जी मैं कोटा से। अच्छा, तो ये ख्वाहिश कब पैदा हुई कि एयरफोर्स में आना? यही सर, मैं बचपन से ही मोटिवेटेड था एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए। टीवी पे हम जब सर राशिद मिनहास के ड्रामास देखते थे तो सर हमें बड़ी मोटिवेशन होती थी। तो पेरेंट्स ने भी काफ़ी बैक किया हमें, तो हमने सर अप्लाई किया और अल्लाह के करम से पहुँचे। तो ये पैरा जंप के जो आप आए हुए हैं, ये तो एडिशनल चीज़ है। यस सर। क्यों ये करना चाह रहे हैं? सर ये एक एडवेंचर है सर, एयरफोर्स में आता है सर। आपको लगा यहाँ पे कि जो ट्रेनिंग होती है वही टफ होती है इधर? नो सर, डर की बात नहीं होती, बस गट्स की बात होती है और मोटिवेशन की बात होती है। जिस बंदे में है वो आके करे सर। ये एक साइकोलॉजिकल हाइट है सर की। जितनी दिखा रहे हैं आप? जी बिल्कुल। ये आप कह रहे हैं साइकोलॉजिकल हाइट है? जी हाँ, इस हाइट से मैक्सिमम एक बंदे को डर लगता है। इससे आप ऊपर चले जाएं आपको डर कम लगेगा, इससे नीचे चले जाएं डर कम लगेगा। अच्छा, ऊपर चले जाएंगे तो डर इसलिए कम लगेगा जी, हाइट इतनी है, कहीं ना कहीं पैराशूट खुल जाएगा और नीचे तो खैर हाइट होगी। बिल्कुल। ये जगह वो जहाँ से ये डर होता है कि अगर गिरे भी तो शायद पैराशूट ना खुले। ना नहीं, उस सेंस में नहीं, बल्कि एक ह्यूमन की जो साइकी है उस पे वो बंदा इस साइंटिफिक है कि इस हाइट से वो मैक्सिमम डरता है। अच्छा, ये जो आपने उठाया हुआ ये क्या है? ये मोटर है पैराग्लाइडिंग के लिए। ये किस लिए है? ये ऐसी टेरेन्स में जहाँ पे एयरक्राफ्ट वगैरह इतने ऐसे अटैक नहीं कर सकते, तो वहाँ पे उसके लिए यूज होते हैं। तो ऊपर से आप नीचे आते हैं हाइट से, फेयर होता है? शुरू में फेयर था या अभी फेयर होता है? स्टार्ट में थोड़ा था, प्रैक्टिस हो गई है तो अब सही है। शुरू होता था? शुरू में अब बिल्कुल नहीं है? नहीं, अब काफी ठीक हो गया। With fraternity and happiness. Amin. कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना कि व्हाट इज द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ दिस कंट्री? इसके लिए आप पे इतनी मेहनत हो रही है, वो क्या है? इंडिपेंडेंस। ऑफ कोर्स ये एक चीज आपको सिखाई जाती है कि यू बिकम वेरी इंडिपेंडेंट एट अ वेरी अर्ली स्टेज। डर ये डाइन आउट है जो अकेडमी के सीनियर के जाने पर फेयरवेल डिनर के तौर पर दिया जाता है। तमाम कैडेट सीनियर की कमांड के बगैर जुम्बिश भी नहीं कर सकते। चेयर ऑफ कमांड इस तरह है कि यहाँ पर एक सीनियर है और एक मिस्टर वाइस। लेडीज एंड जेंटलमैन, बिस्मिल्लाह। वाइस सीनियर को मुकम्मल तौर पर देखकर फॉलो करता है
जबकि बाकी तमाम कैडेट्स वाइस सीनियर को देखकर उस पर अमल करते हैं। गोया मैदान जंग में सोचे समझे बगैर बिला खौफ खतर सिर्फ अपने सीनियर की कमांड पर आग में भी कूद जाते हैं। डाइनिंग आउट में सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब सीनियर अपना हाथ खाने से खींच लेगा यानी खाना खाना खत्म कर देगा तो जूनियर्स भी 100% इस हुक्म की इताअत करेंगे और खाना खाने से रुक जाएंगे। Ladies and gentlemen, Alhamdulillah. May Allah bless the people of Pakistan. Ameen. अकेडमी की सबसे अहम शख्सियत वो टैलेंटेड लड़कियां, कैडेट और अफसरान हैं जो पाकिस्तान जैसे माशरे में हथियार उठाने से लेकर फाइटर जेट चलाने तक मर्दों के बिल्कुल बराबर नजर आएंगे। हेल्पर्स एक कदम दाने पे लो, चल। टेल फाइंड पोजीशन। टेल range 200. Park the rifle and bring it in your shoulders. 20 rounds, single shot, in your own time, at your own target. Detail, fire! First of all, the aura, the uniform, the discipline, that attracts me. अगर हम लेडीज़ के हिसाब से देखें तो काफ़ी डिफरेंट एंड टफ जॉब है, बट डेफिनेटली अगर आप में वो पैशन है और अगर आपको शौक है तो यू कैन डू एनीथिंग। हर बंदे कर सकता है। यहाँ पे मेन चीज़ इसकी मेहनत होती है, लेकिन इसके साथ साथ आपको शौक भी है। किसी भी आप फील्ड में जा रहे, जब तक आप उसको शौक से नहीं करेंगे, दिल से नहीं करेंगे, आप उसमें कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। तो मेन चीज़ है आप उसमें काम में कितनी इंटरेस्ट लेते हैं। अगर आप मोटिवेटेड हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, तो दैट इज नॉट इम्पॉसिबल। विद रिस्पेक्ट टू मिलिट्री ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। नॉर्मली हम पायलट्स होते हैं तो हमें उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डिफेंस ये एक इंपॉर्टेंट इशू था, तो इसको हमने शौक से किया और बहुत मजा आया इसमें। मेरी फैमिली का शुरू से शौक था कि कोई उनका बेटा फोर्सेस में जाए, तो जब मैंने एफएससी की तो उन्होंने कहा कि तुम ट्राई करो। तो फिर जब लगन के साथ और मेहनत के साथ टेस्ट वगैरह दिए तो क्लियर होते गए और फिर मेरा भी माइंड बन गया कि फोर्सेस की तरफ। अकेडमी के शब रोज डिसिप्लिन के सांचे में ढले हैं। यहाँ खाना खाने से लेकर खेलने तक एक खास नज़्म व ज़ब्त पाया जाता है जो इन कैडेट्स को आम लोगों से मुमताज कर देता है। बाहर की दुनिया के जो लोग ये समझते हैं कि एकेडमी में सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग होती है, वो सही गलत है। यहाँ पर इंजीनियरिंग से लेकर बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात तक हर वो मजमून पढ़ाया जाता है जो इन कैडेट्स की फिक्र को मारूजियत या ऑब्जेक्टिविटी के सांचे में ढाल दे, इनको जदीद बना दे। फ्यूचर के सोल्जर्स हैं, फ्यूचर कमांड करेंगे आप स्काइज को, तो इसमें इमेंसली इम्पोर्टेंट है ये जानना सबसे पहले कि आपका जो इंटरेक्शन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हो रहा है वो कितना इम्पोर्टेंट है। रियल पॉलिटिकल वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में, रियल पॉलिटिक्स में कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना कि व्हाट इज द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ दिस कंट्री। इसके लिए आप पे इतनी मेहनत हो रही है, ये वो क्या है, ये तो मैं ये जानना चाहता हूं आप लोगों से कि उसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री इज व्हाट फॉर यू। कौन कैडेट है जो सबसे पहले ब्रेवरी का सबूत पेश करते हुए हाथ खड़ा करे? एंड आई विल आस्क दिस आंसर फॉर कौन सबसे पहले होता है? पिंके हुनैरा फरीद, 75th इंजीनियरिंग कोर्स। मेरे ख्याल से नेशनल इंटरेस्ट अपने ज़ाती मफादात से निकल कर अगर कौमी मफादात के बारे में सोचा जाए तो उनको नेशनल इंटरेस्ट कहा जाता है। अपनी ज़ाती मफादात के ऊपर अगर कौमी मफादात को तरजीह दी जाए, अपने कौम और कौमियत और
सेक्स और